Hi everyone, what's up? Very warm welcome. Thank you so much for joining in, guys. Today's this live session is about depression, anxiety, loneliness, mental health, everything regarding mental health and emotional well-being. आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं very popular, renowned life coach, motivational speaker, and co-founder of Possible is Suresh Semal ji. We are just trying, me and Suresh ji, कि हम किसी भी तरीके से contribute कर सकें. I think it's high time कि जब हम सब मिलकर बात करें मेंटल हेल्थ की, शायद तभी कुछ चेंजेस आ सकते हैं. So our small effort. So anytime soon. I don't know if you all can see me or not, and I'm waiting for Suresh ji to join in. I don't know आप लोग मुझे देख पा रहे कि नहीं. मेरा ना this whole thing that I'm trying to do a broadcast in a landscape format वो बहुत मुश्किल से हो रहा है. I don't know मुझे कोई देख पा रहा है कि नहीं, but we will be talking about this. And guys, before I start this, I pay a humble tribute to Sushant Singh Rajput. Sushant was the first celebrity that I met in Mumbai. मैं पहली बार डिस्कोथेक गई थी and Sushant was there. And मेरी रूममेट सुशांत और अंकिता के साथ काम करती थी, तो हम बहुत बातें करते थे, बहुत कुछ करते थे. All I can say is Sushant, wherever you are, we love you and we miss your genuine smile, and you're gonna be part of our lives no matter what. Thank you so much for being part of our life. Just stay happy wherever you are. So I don't know, guys. I think I'm just waiting for Suresh ji to join in, and I would request everyone to please share the broadcast. And जितने भी लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिकॉज आज की जो ब्रॉडकास्ट है वो सुरेश जी के साथ है. सो I'll only take him live. कोई मुझे देख पा रहा है? कुछ क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता. मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लाइव हूँ कि नहीं. I'm not getting any comments either, so I don't know. क्या कोई मुझे देख पा रहा है? Okay. I don't know. Guys, can you see me? Jai Mata Di. I'm just waiting for Suresh ji to join in, guys, and then we will start the broadcast. आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, इमोशनल वेलबींग के बारे में. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे आए थे, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे. एंड बिफोर सुरेश जी जॉइंस इन, मैं आप सभी लोगों से एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन एक दिन में नहीं होता. अगर आपके आसपास कोई डिप्रेस है तो इसका मतलब वो शख्स बहुत टाइम से इमोशनली उस चीज़ से लड़ रहा होगा, जूझ रहा होगा. सो आई होप सुरेश जी हैज़ सुरेश जी इज हियर. Yay! Very warm welcome, Suresh ji. So good to see you. Pleasure is all mine. Thank you.
तो सुरेश जी, क्या हम उसी रफ्तार से जाएंगे जिस रफ्तार से आपके पीछे आपका ये घोड़े का स्टैचू जा रहा है? ये जो घोड़े का स्टैचू है, आई थिंक ये आज के टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। See, आज की तारीख में मोस्ट ऑफ आवर ट्रबल्स या is because of this horses running in our mind. Okay, so this horse is a very, very powerful medium to take us from one place to another. But the only problem is, are you in control of this horse, or is this horse controlling you? क्या बात है। And I can clearly see if the rider is not good, or if the rider cannot disassociate himself or herself from the horse, you get totally identified with this horse. Oh, then you never know where this horse can take you. सुरेश जी, so let's start from the beginning कि जो जैसे कि हम पैदा होते हैं with the power to think, एग्जैक्टली ये जो पावर है ये हम खोते कब हैं? when we lose this power to ride the horse? Actually, see, इसका आंसर थोड़ा आध्यात्मिक लगेगा लोगों को, लेकिन अगर लेमन अंडरस्टैंडिंग में समझें, the moment you and I start getting associated with the roles that we are playing, we forget we are the riders, not the horse. ये ऐसे ही, जैसे मैं कई बार ना मजाक में भी अपने सेशंस में कई बार कहता हूँ कि जैसे अगर कोई सिनेमा का स्टार है, अब आप सोच के देखिए, जिसको देखते ही लोग अपने फोन निकाल लेते हो, जिनके साथ सेल्फी लेना चाहते हो, जिनके ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाते हैं, और जिनके लिए मतलब लोग, पब्लिक पागल हो रही है। अब ये आदमी इस पब्लिक के प्यार को परमात्मा का प्रसाद समझकर अगर रिसीव कर रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो ये समझने ही लग जाए कि ये बस मैं ही हूँ, और बस जो मुझे समझ रहे हैं मैं ऐसा ही हूँ, ट्रस्ट मी, this person will go into a lot of mental trauma himself. Okay? Immediately जब कैमरा कहता है ना आपकी, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, क्योंकि शायद इसे फॉल्स ईगो कहते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि हम सबके साथ लाइफ में होता है कि हम जिस पोजीशन पे हैं, जब उस पोजीशन को सीरियसली लेके ऑपरेट करने लगते हैं तो अक्सर काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कई बार जब मैं बहुत अच्छा काम कर रही होती हूँ और मुझे बहुत अटेंशन मिलता है, तो मुझे भी कॉन्स्टेंटली खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यू आर नॉट ऑलवेज एंकर ऑन अ पर्सन, यू आर जस्ट अननोन, सो जस्ट चिल। और जब भी मैं वो भूल जाती हूँ तो because I start taking everything so seriously, because I feel like everything that I'm doing is defining me, कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे फर्क पड़ता है। और मैंने क्या पहना, क्या बात की, क्या पोस्ट किया, तो बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो हैंड हो जाता है। तो एक्चुअली जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं वो जिंदगी का हिस्सा है, वो जिंदगी नहीं है, आप नहीं है। अगर आप उसे सीरियसली लेंगे तो बहुत प्रेशर हो जाएगा। राइटली सेड बाय सुरेश। तो सुरेश जी, आई रियली वांट टू नो कि क्या एक दिन में या एक इंसिडेंट से कोई डिप्रेशन में जा सकते हैं? अनुपमा, frankly see, डिप्रेशन, एंजाइटी, अगर आप इसको क्लिनिकली देखें, मेडिकली देखें, the answer is no. आंसर इज नो। और इसका क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, क्योंकि ये एरिया ना मेरी एक्सपर्टीज का नहीं है। मैं भी वो बाकियों की तरह इधर उधर की बात कर सकता हूँ। बट व्हाट आई कैन से विद कॉन्फिडेंस इज कि आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो कि अपनी अपनी लाइफ में रब दी मेहर है, कामयाब हैं, अगर एक चीज का ध्यान रखें तो आई थिंक ये जो डिप्रेशन है, अगर इसको हम वो ना माने, एक कीर्तिमान ना माने, तो लोग डिप्रेशन में हैं, इसको कोई अचीवमेंट ना माने कि मैं डिप्रेशन में हूं। लेट्स टेक इट एज अ डिसीज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस। ये कैसा लगेगा अगर कोई एक आदमी के कि देखो मेरे को बार बार जुकाम होता है, और यार जुकाम होता है तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दो और उस पर काम कर लो, बट लेट्स नॉट ग्लोरीफाई दिस। जी, लेट्स नॉट ग्लोरीफाई दिस। और ये आजकल एक फैशन डिसीज सी भी हो गई है कि आई एम आल्सो गोइंग थ्रू सीवियर डिप्रेशन। एटलीस्ट इसको बीमारी समझें, इसको ये ना समझें कि ये कोई बड़ा कीर्तिमान है। ओके, और आई थिंक
पॉसिबल कि जैसे सबको प्यार होता है, जैसे सबको हार्ट ब्रेक होता है, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दौर आएगा जब आप इमोशनली बहुत टूट जाएंगे? मतलब इस ह्यूमन जर्नी में ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? और हमें किसी ने बताया क्यों नहीं कि ये पॉसिबिलिटी है, कि एक टाइम आएगा जब आपको आपको समझ नहीं आएगा कि आप अपनी सोच का क्या करें? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर इसके बारे में भी थोड़ा स्कूल में, कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पढ़ाई होती, या हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा हमें ग्रूम कर दें। इनफैक्ट एक्चुअली होता क्या था ना पहले अनुपमा, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, पहले क्या होता था कि लोगों की जो परवरिश होती थी ना, जो छोटी एज से, वो जनरली बहुत सारे लोगों के बीच में होती थी। So a person was able to go through a lot of mixed experiences. They were not all very good experiences. Yeah. आजकल रब दी मेहर हो गई है, बच्चे कम हो गए हैं, तो ज्यादातर लोगों को बचपन में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा मिलते हैं। ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अभी भी गरीबों के बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आएगा कि ये डिप्रेशन क्या होता है, पेट भरा होना चाहिए, बाकी सब तो संभाल लेंगे। सही बात। तो ये तो आपके और मेरे जैसे लोगों को समस्या होती है जिनके यहाँ के घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं और वो कमान वगैरह हमारे हाथ में रहती नहीं है। तो बिकॉज थोड़ा मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस से अभी बच्चे नहीं गुजर रहे, और आप लोगों ने शायद अनुपम खेर जी की वो किताब भी पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने अपना वो एक्सपीरियंस बताया जब वो 10th क्लास में फेल हुए थे, और कैसे उनके फादर ने उनको सेलिब्रेट किया था, उनको क्लास से गए थे कि आप उत्तर आज तेरे को पार्टी देनी है, और समोसा खिलाने के बाद बताया था पार्टी इस बात की है बेटे कि आज तू फेल हो गया, क्या बात, और आज हम तेरा फेलियर सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि तू लाइफ में पहली बार फेल हुआ है, और आज से तुझे पता चलेगा कि फेल होना क्लास में लाइफ का फेलियर नहीं है। सुरेश जी, क्या हमारी अपब्रिंगिंग में एक कमी है? क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है कि हम सबको ये बताया जाता है कि बेटा करियर बनाना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पर कोई अपने बच्चों को ये नहीं बता रहा कि ये सब लाइफ का हिस्सा होंगे, ये आपका लाइफ नहीं होगा। लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ कैसे एंजॉय करनी है, जब जब आप खाली अकेले बैठेंगे, यू नो हाउ टू हैव फन। एक मतलब बिना जॉब के या बिना डिग्री के हम क्या है ये हमें कोई बता ही नहीं रहा। हमको लगता है हमारी पहचान ही वही है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आपने गरीब बच्चे की बात की, एक गरीब बच्चे को शायद वो एक बैगेज को नहीं फेस कर रहा कि मुझे कुछ बनना है, ये अगर मैं ये नहीं बना तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या वो जो हमारा अस्तित्व का डेफिनेशन चेंज कर दिया, कैन दैट कुड आल्सो बी द रीजन दैट वी आर सो डिप्रेस्ड? दैट इज ऑल्सो अ रीजन। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, सडनली बिकॉज ऑफ फ्यू इंसिडेंट्स जो भी हो गए हैं और जो प्रोमिनेंट लोगों के हो गए हैं, जिसके कारण एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दीज थॉट्स नाउडेज वेरी ऑफन, बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पेरेंट्स मे बी पुटिंग these, but that not intentionally that they want to damage us. अपनी बुद्धि के हिसाब से वो हमारा हित ही सोच रहे हैं। अब उनकी बुद्धि की अपनी अपनी सबकी सीमा होती है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, जो आज की तारीख में आपके और मेरे जैसे लोगों को ये इस परेशानी से अगर बचना है, तो इसके 2-3 उपाय हैं, अगर वो कर ले तो शायद थोड़ी सी मदद हो सकती है। जी जैसे मैं उसी पे आ रही थी, कोई तरीका है? इसके 2-3 तरीके हैं। इसमें ना मेरे से अच्छा मेरा जो यंगर ब्रदर है, माय यंगर ब्रदर, he is living this in a better way than myself, by the way, and I have learned this from him. So one advice that I would like to give to all of you, including myself, is you should have a Krishna in your life. Now when I'm saying Krishna, I'm not saying Lord Krishna. So those of us who are not spiritual or religious, they should not mind it. What I mean is that you should have a mentor, not coach. You should have a mentor in your life. आप और मैं भी देखिए, अर्जुन से बड़े धुरंधर तो हम नहीं है, अर्जुन से बड़े टैलेंटेड तो हम नहीं है। अर्जुन ने अपनी लाइफ का जो सबसे बड़ा बैटल था वो महाभारत था। अर्जुन ने महाभारत की बैटल के लिए पांडवों में सबसे ज्यादा तैयारी की थी। वो अपने टाइम का स्टार था पांडवों में। आप सोच के देखिए, माइनस अर्जुन पांडवों का क्या होता है। द्रौपदी जी को भी वही जीत के लाए थे, इज्जत का नुकसान भी द्रौपदी जी को। तो अर्जुन वाज द स्टार ऑफ महाभारत, बट ही वाज द वन हु गॉट डिप्रेस्ड। ही वाज थिंकिंग अबाउट टेकिंग वीआरएस ऑन द बैटलफील्ड। वो तो कह रहा था ना कि छोड़ो साहब, ये झगड़े वगड़े में क्या पड़ना है जी, मैं जा रहा हूँ वीआरएस ले लेता हूँ।
Thank goodness he had a good Krishna as a mentor. अगर यही सवाल कहीं अर्जुन ने शकुनी से पूछ लिए होते या और इधर एक आधे से पूछ लिए होते तो महाभारत उसी दिन खत्म हो जाता ना. प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपके और मेरे जैसा व्यक्ति कभी ना कभी इन चीजों से नहीं जूझेगा. करेक्ट. So should have one Krishna in your life. तो सुरेश जी, that comes up with two questions. एक कि पहले क्या होता था कि हम परेशान होते थे तो हमें हमेशा लगता था कि हमारे माँ बाप या दादी बाबा हमसे ज्यादा जानते हैं और उनके पास हम जाते थे और हमें इमोशनल या मेंटल कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता था. अब वो नहीं है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से अलग लेवल की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं. तो जब हम उनको बोलते हैं कि से हमारे वर्क प्लेस पे हरासमेंट है, तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या हमें समझाए. और दूसरी बात सुरेश जी, जैसा कि आपने खुद ही मेंशन किया कि इतने सारे मेंटोर के नाम पे शकुनीज विचेस आउट देयर, दैट हाउ डू वी नो कि अच्छा दिस इज द राइट मेंटोर फॉर अस. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पेरेंट्स जो है आजकल वो हम उनसे उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन एंड डिफरेंट एक्सपोजर. आई एग्री. इसीलिए मैं कह रहा हूँ अ कृष्णा इज बेटर. But then how to identify the Krishna? The first eligibility criteria is that person should not be dependent on you financially. Okay. Second is that person should be better than you, so that the person can give you point blank feedback. उसको इस बात की चिंता ना हो कि अगर मैंने ये फीडबैक दे दिया तो अनुपमा अगले महीने से मेरी कोचिंग ही कैंसिल कर देगी. आपको पता ना आजकल लोग एक चीज को रिजेक्ट कर देते कि चल भाई तू कोचिंग ठीक नहीं करा रहा. So you need to have that kind of a person who is doing it phenomenally better, is independent of you. A person who is friendly to you may not necessarily be your friend. Nice. सुरेश जी, इससे मुझे एक चीज समझ आई कि बहुत लोगों के पेरेंट्स अपने बच्चों पे पैसे को लेके इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कई बार जब बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो फेल हो रहे हैं या वो जॉब से थक गए, तो उनके माँ बाप उनको सही डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो पैसा ना बंद हो जाए, वो सिक्योरिटी जो आ रही है बच्चे की तरफ से वो ना बंद हो जाए. और अक्सर इस प्रेशर में जो बच्चे वो सही स्टेप नहीं ले पाते. तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, क्योंकि इट मेक्स यू फील सो लोनली. आप इतने अकेले हो जाते हैं, आप क्योंकि बाहर वाले को भी नहीं बोल सकते यार कि मेरे पेरेंट्स मुझे खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि मुझ पर डिपेंडेंट है. वो मुझे ऐसा लगता है घर का लोनलीनेस इज द बिगेस्ट थिंग दैट हार्म्स यू इमोशनली. इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? You are absolutely right, Anupama. This is called loneliness. Loneliness का मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास लोग नहीं हैं. जैसे मैं अक्सर कई बार कहता हूँ किसी जब मैं ये COVID-19 से पहले because of my traveling profession, I always used to tell people in the seminars that I am alone most of the times, but I am never lonely. Yeah. Because most of the time, 15 days in a month, I was staying alone in the hotel room. I am traveling here and there, so I'm alone. But I never felt lonely. Loneliness is a feeling. It has got nothing to do with your environment. So loneliness is, आज सुबह ही मैं इनफैक्ट इंसिडेंटली अपनी बेटी को भी बता रहा था कि लोनलीनेस का मतलब ये नहीं. जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, हमारे यहाँ 15 लोग हैं, लेकिन आपको पता है इन 15 लोगों में रहता हुआ भी एक आदमी लोनली फील कर सकता है. क्यों? पर मैं ये फील करता हूँ कि यार इनको क्या बताऊं, इनको बताऊंगा ये और स्ट्रेस्ड हो जाएंगे. अगर मुझे समझ यार इनको ये बात समझ ही नहीं आएगी जो मैं इनको समझाऊंगा, तो इवन इन अ फैमिली ऑफ 15 people I can feel lonely. So loneliness is a feeling where you feel that there is nobody who will understand you and is worthy of your sharing. But trust me, Anupama, this is our ego talking. That we don't find people worthy of sharing at times. Okay, there is a डर, क्योंकि सुरेश जी मैंने देखा कि लोगों ने फेसबुक पे एक चीज और भी शेयर की कि तुम लोग बड़ा कह रहे हो टॉक टू मी, बट तुम ही लोग हमारी बातें जानने के बाद हमारा मजाक उड़ाओगे, हंसोगे. तो क्या वो वल्नरेबिलिटी और वो इनसिक्योरिटी भी एक रीजन है कि पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ओपन अप? Here I give people a suggestion. Immediately find out a friend जो आपका 10वीं क्लास से पहले का फ्रेंड है.
They are the ones with whom you can do sharing without worrying and without the feeling of being judged. बाकी सब जगह क्या होता है, आप अगर कोई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कहता है ओके बता, एंड पीपल आर मे बी टेकिंग नोट्स की तेरे को अगली बारी फिर इसको मेंशन करेंगे. लेकिन आपको पता ना, जो आपकी 10वीं क्लास से पहले की जो मित्र है ना, उनके साथ यू आर एब्सोल्युटली यू आर ईगोलेस. ओके, my suggestion generally to people is immediately find out those friends. और 10-20 ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई एक दो ढूंढो और उनसे रोज बात किया करो. जब डिप्रेशन में चले जाओ तब नहीं. सुरेश जी, पहले रोज करो तो जाओगे नहीं. मैंने अभी अपनी स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप ज्वाइन किया और मैंने बहुत सालों से किसी भी स्कूल फ्रेंड से बात नहीं की थी. एंड आई वाज लाइक, आई कैन स्टिल टॉक स्टूपिड, मतलब yes. एंड आई वाज लाइक, और मैं कॉन्स्टेंटली ग्रुप में लिख रही हूँ, गाइस मैंने इतनी फालतू बात बहुत दिन बाद की है. एंड कई लोगों को लग रहा है व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, मतलब, बट मैं उन्हें ये नहीं बता पा रही थी दैट आई एम इन अ प्रोफेशन वेयर वी नेवर टॉक स्टूपिड, you know, and also मेरा job तो is like I can't talk stupid. So एक और बात है सुरेश जी, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेके आपने अभी जो ये बात कही, उससे मैं बता रही हूँ कि MS धोनी की सक्सेस के बाद सुशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और अपने स्ट्रगलिंग डेज में सारे दोस्तों से भी डिस्कनेक्ट कर लिया था. और उसके बाद is when he started feeling lonely and his film started flopping. So a lot of people don't agree, but no amount of super success can fill that void. अगर आप अकेला फील करें, खासतौर से इस शहर में जहाँ पे हम बिल्डिंग में तो रहते हैं 1000 लोगों के साथ, पर हम अकेले ही रह रहे हैं. तो आई अग्री की और सेम विथ मी, मैं जब मुंबई में आई थी तो मैं जितना कनेक्ट अपने उन दोस्तों से कर पाती हूँ जो मेरे साथ तब थिएटर में स्ट्रगल करी थी, वो मैं उन लोगों से नहीं कर पाती हूँ जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, बिकॉज इट्स मोर प्रोफेशनल. और तब क्या ये भी हो रहा कि तब हम अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहे थे, अपनी कमजोरियां शेयर कर रहे थे. Because at that time, Anupama, we were in a less egoic states. Okay. जैसे हमारा आज एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप है. आपको पता है हमारा एक सिस्टम है, हम उनसे महीने में या 2 महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन कोई अपनी गाड़ियों से नहीं आता. अच्छा. We go by metro. मेरे यंगर ब्रदर ने तो और अच्छा किया है, उन्होंने अपने स्कूल की टी-शर्ट्स बनवा ली हैं ताकि कोई कपड़े से भी डिफरेंट ना दिखे कि आज कोई किसी स्टेज पे पहुंचा है, आज कोई किसी स्टेज पे पहुंचा है. We don't talk about work. We only recall the school memories. That's it. वहां कोई सुरेश सेमवाल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है कि वहां जाके लोगों को मोटिवेट करेगा और साइकोलॉजी समझाएगा. No, that is not allowed. In that WhatsApp group, I am not supposed to put any motivational poster. वरना वो गालियां लिखते हैं हिंदी वाली मोटी मोटी. सुरेश जी, पर बैलेंस कैसे बनाएं? जैसे कि चलिए आपको लाइफ का ये पर्सपेक्टिव पता है, बट ये जो बैलेंस है बिटवीन द प्रोफेशन ही नहीं सुरेश जी, वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे लोग पहले आपसे मिलते कि देखते हैं आपने आईफोन यूज कर रहे हो कि iOS फोन है आपका कि एंड्रॉइड फोन है, मतलब मिलते ही व्हेन पीपल स्टार्ट जजिंग यू, इतनी शैलो वर्ल्ड में वो जेन्युइननेस को ढूंढना और उसके साथ जीना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. 1-2 साल बाद हम सबको वही चाहिए कि कोई दिल से हमें प्यार करे, हमारी केयर करे. उसका बैलेंस बनाए तो बनाए कैसे? देखिए, उसका बैलेंस बनाने से पहले जो एक चीज, अगर आप लोग बार बार फिल्म इंडस्ट्री में आप जाने, अमिताभ बच्चन जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उनसे किसी ने पूछा, हर आदमी को ना एक ये चीज अपने दिमाग में कहीं क्लियर रखनी चाहिए. अमिताभ बच्चन से किसी ने पूछा कि अगर आप एक्टर नहीं बन पाते, जैसे कि शुरू में आपकी मूवीज फ्लॉप हुई, तो आप क्या करते? तो अमिताभ जी ने रिस्पॉन्स दिया कि मेरे को बड़ी क्लैरिटी थी कि अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो जाके टैक्सी चला लूंगा इलाहाबाद में. मतलब मेंटली ही वाज रेडी फॉर फेलियर कि अगर हो गई तो ये तो कर ही लूंगा, भूखा नहीं मरूंगा. और एंड ही वाज अ ग्रेजुएट. सुरेश जी, बट व्हाई वी आर सो स्कैर्ड ऑफ फेलियर? हमें फेलियर से डर लगता है या वो जो रिजेक्शन, जो दुनिया हमें रिजेक्ट कर देगी, प्यार नहीं करेगी, उस बात का डर है? अनुपमा, हमारे ये साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप और मैं जो भी करते हैं ना, उसके पीछे 2 ही इंटेंशन है. वी वांट टू बी लाइक्ड
or we want to feel good about ourselves, or we want to avoid feeling bad about ourselves. That's it. Anything and everything we do, there are only two intentions. Either we wish to feel good about ourselves, or we wish to avoid feeling bad about ourselves. अब उसके चक्कर में हमारे स्क्रिप्ट्स में क्या लिख दिया गया है, इफ आई वांट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ, तो उसके लिए मैंने अपने लिए एक स्क्रिप्ट बना ली है। मेरे आसपास के सब लोगों को मुझे पसंद किया जाना जरूरी है, मेरे आसपास के सब लोग खुश रहने चाहिए। अब जैसे आपका मुझे नहीं पता, मैं 15 लोगों के साथ रहता हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, ये 15 के 15 लोग मुझसे हर वक्त खुश रहे। आपको पता है ये कितनी बड़ी महाभारत है, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर मेरी स्क्रिप्ट ये कहती है कि मुझे ये 15 के 15 लोग हर वक्त खुश रखने हैं और मैं रख पाऊंगा, ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी डिसअपॉइंटेड। अग्री। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, दो चीजों की लोग क्लैरिटी रखे अपने जीवन में, व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। क्या चीजें स्वीकार करनी है और किन चीजों की अपेक्षा करनी है। कुछ चीजें आपको स्वीकार करनी है। क्या स्वीकार करना है आपको? कि सारी चीजें आपकी मर्जी की नहीं होंगी। करेक्ट। आपके अमिताभ बच्चन साहब ने कहा है, मन का होए तो भला, ना होए तो और अच्छा। लेकिन अब ये जो बेसिक चीजें कई बार लोग इसको लाइटली लेते हैं, बट ये पूरा जीवन जीने के बाद अमिताभ साहब ने ये गूढ़ रहस्य जाना है। ये प्रिंसिपल पे मैं अपनी एनर्जी, हाँ, जो मेंटल वो हाईएस्ट। And how would you feel, Anupama, if I were to tell you that you and I, when I'm saying you and I, matlab anybody who's watching us, you and I are suffering our own achievements, not failures. Oh, Baba, that's so deep. So let us understand, this is the problem with the horse. We are suffering our achievements, not failures. आप elaborate करेंगे थोड़ा सुरेश जी, so that people can understand it better. जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुपमा जी, मेरे फेसबुक पोस्ट पे अगर मुझे 25 लाइक आते हैं ना, 25, आई एम सुपर हैप्पी। आपको 25 आएंगे ना, यू विल बी I delete that. You know what? And I am sure the stars that you deal with, उनके अगर 1 लाख से कम आ जाए तो उनको लगता है आज बेइज्जती हो गई। Yeah. अब मुझे बताओ, जो 1 लाख जिसको लाइक आ रहे हैं वो बेइज्जती महसूस कर रहा है, तो रब दी मेहर है। Okay? That's beautiful. So we are suffering our own achievements, trust me. अब जो लोग एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, जब इनको नौकरी मिली थी खुश हुए थे, नौकरी मिल गई है, अब अगले दिन से परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अब रोज ऑफिस जाना पड़ेगा, छुट्टी मारी गई, ये बॉस काम बहुत देता है। आप घर बैठे थे खुश, नौकरी की सफलता मिली, अब आपने चूचू करनी शुरू कर दी है। अच्छा, फिर सारा साल काम करते प्रमोशन के लिए, जब आपको प्रमोशन मिलेगी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, तो अब आप उस बढ़े हुए पद पर अब आप और स्ट्रेस में हो। सो यू आर सफरिंग योर अचीवमेंट, यू आर सफरिंग योर अचीवमेंट। एक लड़की को मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ, ठीक है साहब, उसने मुझको हाँ कर दिया और बाद में हम आपस में, हमारे दोनों इंसान हैं, पता चल गया दूर से ही अच्छे लगते थे और पास में आके फिर वो दूर चली गई। तो अब मैं सफर क्या कर रहा हूँ? माय अचीवमेंट। अगर उस लड़की ने मुझे हाँ ही ना किया होता, मैं उसको जानता ही ना, तो मैं आज क्या सफर करता? कुछ नहीं। That is the problem. We are suffering our achievement. आपकी और मेरे पास गाड़ी है, इसलिए उस पर स्क्रैच लगता है तो 2 दिन मूड खराब रहता है हमारा। गाड़ी होती ना, साइकिल पे चल रहे होते तो कहाँ स्क्रैच लगता, बताओ? We are suffering our achievement. इतने अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हो, फिर कह रहे जी EMI जानी है, अगले महीने का स्ट्रेस है। तो महाराज इतना बढ़िया अपार्टमेंट भी तो है ना। We are suffering our achievement, and if a person is suffering the achievement, what can you expect from this person? Can't we simply enjoy? Do you know why people are not enjoying their achievements? और वो जो मैं आपको बताते रह गया, जो मेरे यंगर ब्रदर में मुझसे बेटर है, मैं तो उसमें अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे कृष्णा ने मुझे ये बताया, मुझे नहीं रियलाइज हुआ था, इसलिए कृष्णा चाहिए लाइफ में। So my Krishna told me, my mentor told me that why my younger brother is living a better quality of life than me. For one simple reason, my mentor told me that Suresh, your reference point is always somewhere in the future what you want to be. जैसे मेरे WhatsApp पे भी जो टैगलाइन है ना, वो है my best is yet to come. My best is yet to come. तो वो तो ठीक है, मोटिवेशन के लिए that is all okay. पर मेरे मेंटोर ने कहा है कि वो मत भूलो from where you started.
If you keep that in your mind every day, you will be thankful to God that, Yes. hey, where was I and where am I today? True. Trust me, if I really look at the point from where I started, whole day I will be writing, thank you, God, thank you, God, thank you, God. If I look at that point. But this horse here keeps me, going, taking here and there, and then we have complaints. But unfortunately, if we start suffering our achievement, that who can save us? अब किसी के बैंक में 90 करोड़ रुपए हो और फिर सुसाइडल थॉट्स आते हो, अब आप जरा समझाना, आप इस देश में है जहां लोगों को मनरेगा के ऊपर सर्वाइवल डिपेंडेंट है, तो इस देश में 90 करोड़ बैंक में हो और आपको सुसाइडल टेंडेंसी हो, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? We are suffering our achievements because people forget from where they started. आपको याद है कि पहले के जो लखपति करोड़पति लोग होते थे, वो अपना लंबरेटा ऑफिस के सामने रखते थे, अपने बजाज सुपर रखते थे, because that used to remind them. MDH वाले साहब अपनी वो बग्गी आज तक रखते हैं. अब जिस आदमी को अपने बग्गी वाले दिन याद है, आज वो अपनी एड देखता होगा टीवी पे, तो वो तो छाती चौड़ी करके घूमता होगा साहब. लेकिन हम लोग वो भूल जाना चाहते हैं जल्दी से, और हम अपने आप को याद दिलाना चाहते हैं मैं तो शायद यही अवतार हुआ था मेरा. ऐसा है नहीं. यू एंड आई हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन लाइफ. हमने ऐसी बहुत सारी चीजें अचीव की हैं जिसको लोग आज भी सपना समझते होंगे. मैं अनुपमा जी आपके बारे में बता रहा हूँ, जिन लोगों के साथ आपने फोटो खिंचा रखी है, जिनके आपने इंटरव्यू ले रखे हैं, आपके शहर के लोग कितनी क्लासमेट्स होंगी जो कहती होंगी कि एक दिन के लिए अनुपमा की जिंदगी दे दो, एक दिन के लिए. मुझे आते हैं ऐसे मैसेज, आ जाओ विद प्लेजर, आ जाओ ले लो and have this stress. But that stress is because you have reached there, right? You remember last time I told you, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. अरे बाबा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. आज तो मुझे 2 फोटो ट्वीट करने के लिए सुरेश जी के नाम से. करो, मेरे ओरिजिनल नहीं है, मैंने भी कहीं से सुने होंगे. जो मेरा कृष्णा तो वही हुआ ना जिसने मुझ तक पहुंचाया. बड़ा सिंपल अनुपमा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो आगे आएगा ना, मैंने शायद आपको पिछली बार कहा नहीं कहा है. देखिए, अगर मुझे ये लगता है कि आई एम टुडे सुरेश सेमवाल बिकॉज, जैसे मैं किसी से कई बार लोगों से पूछता हूँ, टेल मी 3 रीजंस ऑफ योर सक्सेस, तो लोग बताते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डेडिकेटेड, आई एम डिसिप्लिन्ड. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, फिर उनसे पूछो कि ये जो आपका बॉस है क्या कारण है, इनके 3 गुण बताओ. तो पहला, I totally agree. When I came to Mumbai, this is what being told to me. लेकिन जब मैं पहली बार सेट पे गई तो मुझे पता चला, भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है. Yeah. That is the problem. Okay? हर दूसरा आदमी किस्मत की खा रहा है, मैं मेहनत से कामयाब हो रहा हूँ. ये क्या तरीका है सोचने का? देखिए, मैं आपके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, पर मैं अपना जानता हूँ. मुझसे बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्ञानी लोग, बहुत ही ज्यादा, मैं उसका 1% भी नहीं है, और किसी कारण से आज वो जीवन में उस लेवल पर नहीं है जहाँ राबदी मेर से मैं पहुंच गया. True. ऐसे करोड़ों हैं, करोड़ों, सीरियसली करोड़ों. लेकिन मैं पता नहीं यहाँ क्यों पहुंचा हूँ. अब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सेमवाल साहब खाली मेहनत से नहीं पहुंचे हो, रब दी मेहर है. ओके, रब दी मेहर है. देखो, जब रब दी मेहर है. थैंक यू कुचड़ू. सॉरी, ये मेरी कैट का कमाल है. बहुत सारे थैंक यू कुचड़ू जी. And let me tell you one good thing about it. If you can handle a cat, if you can handle a cat, you can handle any relationship. अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट, पर कैसे? दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. आपने कैट पाली है, आपको ज्यादा पता होगा. देखिए, कैट इज नॉट लाइक अ डॉग. या दे आर नॉट. हाँ, कैट अपने मूड से आती है. कैट ऐसे पूंछ हिला के आपको खुश करने की कोशिश हर वक्त नहीं करती. हाँ, एंड समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, आकर हल्का सा टच करके चली जाएगी, और कई बार आप बुलाओगे भी तो नहीं आएगी. इट्स नॉट लाइक डॉग. डॉग तो जब तक आप उसको बुलाओगे नहीं, वो जाता नहीं है. True. So if somebody can have the patience to still love a cat,
that will reflect in your other relationships too. सुन रहे हो It's not सारे easy to have a cat as a लड़कों? pet. It's not easy to have a cat as a pet. Yeah, I Okay, have 3. so that says something about a person. कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल गया तेरी वजह से। तो सुरेश जी, एक और क्वेश्चन था हमारे लास्ट सेशन के बाद जो लोगों ने बार बार पूछा था, दैट दे अंडरस्टूड एंजाइटी बिकॉज ऑफ यू, और वो समझ रहे थे कि इसे कैसे हैंडल कर रहे हैं, बट बार बार उनको एंजाइटी होने लगती है, स्पेशली जैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव सुनते हैं, एवरी टाइम दे लिसन टू समथिंग नेगेटिव, उनको एंजाइटी होने लगती है। सो हाउ दे कैन हैंडल दिस? I think I told you last time also, if you are too much in your head, you are almost dead. Yeah. Okay, तो थोड़ा सा ना इसको थोड़ा फिजिकली भी ठीक करो। शायद मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया, 3 चीजों पे लोग काम करें। एक तो ना अपने एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट मेरा मतलब ये है कि आपके आसपास जो है अपनी पसंद के कलर के पेंट करा लो, अपने बेडशीट ठीक रखो, क्वालिटी ऑफ मैट्रेस ठीक रखो, दरवाजों से स्क्वीकिंग नॉइस ना आए, कोई टूटी हुई चीज आसपास ना हो, अपने एनवायरनमेंट में कोई भी चीज ऐसी ना रखो जो आपको नेगेटिव एनर्जी देती हो, क्योंकि उसको देखते ही ना कहीं आपका वो जो मूड बैड है वो डिसबैलेंस हो जाता है। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट अ पर्सन शुड डू। सेकंड, यू शुड टेक केयर ऑफ योर फिजियोलॉजी। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड ठीक रखें, शोल्डर्स ठीक रखें, चिन अप रखें, और आई मूवमेंट्स जो है ज्यादा डाउनवर्ड्स ना रखें। आपको पता है व्हेनेवर यू आर सैड, योर आईज आर ऑलवेज डाउनवर्ड्स। ओके, सो इफ यू कीप देम स्ट्रेट, अच्छा व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू दीस काइंड ऑफ थॉट्स, इंटेंशनली आई मूवमेंट को अपवर्ड करो, लुक अप। थोड़ी फिजियोलॉजी अगर आप थोड़ी ठीक करो तो यू विल रियलाइज कि ओके, दिस केमिकल इज आल्सो गेटिंग अंडर कंट्रोल। ओके, और एक और मेरी जो लोगों से रिक्वेस्ट है, भले ही फ्लैट्स में रहते हैं लोग, जब भी मौका मिले ना थोड़ी देर बालकनी में खड़े हुआ करें। ट्रू दैट आई कंप्लीटली एग्री। यू शुड लुक एट द स्काई। ओके, थोड़ा सा जितना स्पेशियस आप एनवायरनमेंट में रहोगे ना, आजकल वो थोड़ा सा क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट है, महंगी हो गई है जगह, तो लोगों के पास वो स्पेस नहीं है, तो जितना हो सके और कुछ नहीं, टेरेस पे चले जाओ, कभी बालकनी पे चले जाओ, ग्राउंड में चले जाओ, बट बी इन सम स्पेशियस प्लेस। उससे भी थोड़ा सा ना यहाँ पर फर्क पड़ता है। ओके, और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे रिचुअल्स रहे हैं जहाँ पे लोगों को पता था कि कैसे हमें कॉन्स्टेंटली हमारी बेडशीट बदलनी चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, जिन कपड़ों में हम नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे, जैसे किसी के यहाँ से आते थे, सैड होते थे, लोग उसे दोबारा नहीं पहनते थे, उसको डिस्कार्ड कर देते थे। सो जो आप कह रहे हैं दैट हाउ भी जो हम फील कर रहे हैं हमारे आसपास की चीजों से एक्यूमुलेट करते हैं, इसीलिए खाने को धूप लगाया जाता था, कपड़े को धूप लगाया जाता था, खुद को धूप लगाया, बिकॉज इट क्लीन्स एनर्जी, इट गिव्स। तो सुरेश जी, हम इतने रिच थे नॉलेज में, वेयर डिड वी लूज द ट्रैक? I think we lost the track because our generation especially thought that if you can speak English, only then you're intelligent. And people जो अंग्रेजी में आपको नहीं समझा रहे वो तो बुद्धू है। इसलिए हमने गांव वालों की एडवाइस नहीं सुनी, अपने दादा दादी और नाना नानी के नुस्खे नहीं सुने, क्योंकि वो अंग्रेजी में नहीं समझाते थे। वो डॉक्टर अंग्रेजी में समझा देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन में हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, तो लगता है कोई ठीक ही लिखा हुआ है, चाहे पैरासिटामोल ही लिखा हो। Actually, honestly, Suriti, because when I joined retreat centers या जब मैं न्यूट्रिशनिस्ट से मिली, डाइटिशियन से मिली मुंबई में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग मुझे जो भी बता रहे हैं ये तो मेरे गांव पे होता था। They're not telling me anything that I didn't know. It just आप मुझे बस ये बोलिए कि ये करने से, जैसे जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव में एक रूल था कि सनसेट के बाद खाना खाने से आप कुछ बुरा एक्सपीरियंस करोगे। आज लोग बोलते हैं यू नो, इफ यू हैव स्लो मेटाबॉलिज्म, डोंट ईट कार्ब्स इन द नाइट, रात को मत खाओ, सनसेट के बाद मत खाओ। सारे हीरोइन आज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, जो कि क्या हमारे ये जो हमने अपनी जीवन शैली को छोड़ा है, इसकी वजह से हम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से भी हम जिंदगी से नहीं लड़ पा रहे। हाँ अनुपम, मैं मेरे ख्याल इसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा हमारी कंट्री में, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट वाज ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, उससे पहले भी कुछ और ऑक्यूपेशन था, तो हमारी ना अपनी हिस्ट्री की जो मेमोरी है
या जबकि हमारा पास्ट बहुत रिच था, हमारी जो प्रैक्टिसेस थी वो बहुत रिच थी। तो जिस जनरेशन का अपने पास्ट को सुन के सोच के उसको शर्मिंदगी महसूस हो, उसके साथ ये होना बड़ा नेचुरल है। But if we can take pride in our culture, in our Sanskriti, trust me, we have lot of solutions, lot of solutions. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, लोग ना सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं। ये जितने रात्रि के प्राणी है ना, सीरियसली इनके साथ ठीक घटनाएं होने की संभावना थोड़ी कम है। अगर वर्क कारण से कोई ज्यादा लेट उठता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अग्रीड। ओके, बट सुबह जल्दी अगर आप नहीं उठ रहे, यू आर मिसिंग अ लॉट। यस यस। और सुबह उठ के 30 मिनट अपने लिए लगाने। वैसे तो अखबार बेचने वाला भी उठता है सुबह, दूध बेचने वाला भी उठता है, लेकिन सुबह उठने का मतलब ये नहीं है कि आपने उठ के अखबार फेंकने शुरू कर दिए। सुबह उठने का मतलब ये 30 मिनट्स यू शुड स्पेंड ऑन योरसेल्फ इन द मॉर्निंग टाइम इफ पॉसिबल। और जो मैं आपको 3 चीजें बता रहा था वो रह गई है। पहला मैंने कहा था कि एनवायरनमेंट अपना ठीक करो, दूसरा ठीक करो, और तीसरा जो ये जो घोड़े यहाँ चलते हैं, इसकी जो इनपुट्स हैं, जो लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपसे कहा था, इनपुट्स को करेक्ट करो, सोर्स चेक करो, इनपुट्स कहाँ से ले रहे। सुरेश जी, एक और चीज, चेक योर इनपुट। एक और चीज, आई राइट इट डाउन, ये तीनों चीजें आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हो उन्होंने लिखे होगा। एक और चीज है सुरेश जी की, अगर मेरे घर में कोई डिप्रेस है, मतलब मैं नहीं हूँ पर मेरे आसपास कोई डिप्रेस है या डिप्रेशन में जा रहा है या उसको एंजाइटी हो रही है, उसे टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिक्स क्या फॉलो कर सकते हैं? देखिए, अगर अपने घर का कोई है तो आपसे नहीं होगा कुछ, अदर देन आस्किंग द पर्सन हाउ आर यू और समथिंग। आप ये पता करो कौन व्यक्ति है जो इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी ये सुनते हैं। आपको पता ना, घर वालों की कोई नहीं सुनता। मेरे घर में 15 लोग हैं, वो मेरे से मोटिवेट होते हैं, वो मुझसे नहीं होते ना मैं उनको करता हूं। आप अपने घर वालों के साथ यही कर सकते हैं, बी रिस्पेक्टफुल टू देम, लिसन टू देम, लेकिन आपकी सजेशंस वो सुनने के चांसेस थोड़े कम है। खासकर क्योंकि उम्र आपसे ज्यादा है, वहां तो और भी कम है। तो वहां आप ये पता करो कि ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई चाचा जी हैं, कोई ताऊ जी हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई पड़ोसन आंटी है, या ये इनका रिलीजियस माइंडसेट है, तो इनको कोई किताब में कोई चीज अंडरलाइन करके दे कि ये देखो जी, ये तो भगवान ने भी कहा है। ओके, जैसे हम में से जो लोग धार्मिक हैं, उनको मैं अगर एक किस्सा बताऊं, मेरा भी प्रोफेशन ऐसा है, मुझे ये हर तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो एक बहुत स्कॉलरली आदमी है, गीता का बड़ा ज्ञान है उनको। तो एक दिन ना उनकी मैं टॉक सुनने गया, गीता पर डिस्कोर्स था उनका, उनकी टॉक सुनी मैंने। और उस दिन ऑडिटोरियम में जितने ठहाके मैंने सुने, इतने ठहाके तो मतलब आपके नॉर्मल प्रोग्राम्स में नहीं लगते। एंड द डिस्कोर्स वाज ऑन गीता। ओके, सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो जब टॉक ओवर हो गई तो मैं उन स्वामी जी के पास गया। मैं कहा, स्वामी जी बड़ा आनंद आया साहब, ऐसा आनंद तो आज तक कभी आया नहीं। लेकिन गलती से मैंने क्या कहा, मैं कहा स्वामी जी मैं सोच के ही आया था कि गीता पर टॉक है तो बड़ी कोई गंभीर चर्चा होगी। तो वैसे तो स्वामी जी चल रहे थे, पर फिर ये सुन के रुक गए। कहते जी तो आपको बुरा लगा? मैंने कहा नहीं 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 स्वामी जी, बुरा नहीं लगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं क्या सोच के आ गया था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कहते सुरेश जी आपने कभी गधा देखा है, गधा? तो मैं कहा हाँ जी देखा है। कहते आपने कभी सोचा गधे का नाम गधा क्यों रखा है? हाँ। मैं कहा नहीं साहब नहीं। कहते मेरे को भी नहीं पता क्यों रखा है, लेकिन मैंने एक दिन सोचा तो मुझे लगा शायद गधा ना 2 शब्दों से मिलकर बना है, गा और धा। हाँ। तो गा लिया गया है गंभीर में से, और धा लिया गया है धार्मिक में से। अरे बाबा, जो गंभीर कहते जो गंभीर धार्मिक है वो गधा है। मैं कहा मैं समझा नहीं स्वामी जी। कहते देखो, कह रहे धार्मिक आदमी का मतलब ये नहीं है जिसने गीता पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ी है। धार्मिक आदमी का मतलब है जो परमात्मा में विश्वास करता है, जो ये मानता है कि दुनिया को कोई ताकत चला रही है, वो धार्मिक है, चाहे उसने किताब कोई ना पढ़ी। और जिस आदमी को ये पता है कि इस दुनिया को कोई चला रहा है, वो हर चीज देख रहा है, उस आदमी के चेहरे से मुस्कान गायब कैसे होगी? जब जब आप और मैं दुखी होते हैं, जब जब आप और मैं दुखी होते हैं, हमें उस सत्ता पर शक हो रहा है कि कोई है भी। ये जो घी डाला है,
आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में। तो मेरी लाइफ फ्री फ्लो चलती है और मैं मानती हूँ कि एक ताकत है जिसमें ये दुनिया बनाई है। मेरी लाइफ फ्री फ्लो चल रही है, फिर जब लाइफ एकदम सही चलने लगती है मैं उसे कंट्रोल करने लगती हूँ और मैं फिर मुझे लगता है मैं कर रही हूँ। और जैसे ही ये सब मैंने किताबों में पढ़ा था, बट एक्चुअली द मोमेंट यू थिंक आई एम डूइंग इट, इसका असर मेरे पे होगा, इस बंदे के पास ताकत है, देन सब चीज एकदम गड़बड़ होने लगती है। एंड देन यू गिव अप, यू फील लाइक चल जो होगा ऊपर वाली की जो मर्जी। एंड देन यू फील लाइक अच्छा अचानक से रास्ता बन गया एंड थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग। या दैट्स अ वेरी डीप एंड जेन्युइन थिंग दैट यू हैव सेड, सुरुचि। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, ये आपको मदद में आएगी, क्योंकि मैं खुद ना ईगो से बड़ा सफर करता हूँ। ये सारा झंझट ईगो का ही है ना। तो एक बार मेरे दिमाग में ऐसे आया, तो ऊपर वाले के लिए जो आपने अभी कहा ना कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और जब आने लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर ऐसे लगता है ना कि यार ये ऊपर वाला पंगे लेता है। तो एक लाइन मेरे दिमाग में आई थी कि ऐसी भी क्या अकड़ है तेरी, ऐसी भी क्या अकड़ है तेरी कि हमारी अकड़ बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। तो ये एक अहंकारी आदमी की कंप्लेंट है गॉड से कि यार हमारी अकड़ को थोड़ी देर तो रहने दिया कर। थोड़ी देर अगर हमें लगता है कि मैंने मेहनत से कुछ पा लिया तो कोई ना कोई पंगा आ जाता है। तो वो गॉड का तरीका है कि हमें भटकने नहीं देता, हमें ध्यान दिलाता रहता है कि पुत्र आराम से, अगर जीवन में आनंद आ रहा है तो फालतू उछलो नहीं, मन नीवा मत ऊंची। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी जिंदगी मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा, एक्सपीरियंस किया जो शायद मैंने सोचा था कि ये फिल्मों में हो सकता है, किसी की असली लाइफ में तो नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में इतने सारे खूबसूरत मूवमेंट्स और चीजें हुई हैं कि, और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि हमें क्यों नहीं बताया जाता एक दो छोटी बातें। वन, टू लाफ इट ऑफ, मतलब हम क्यों नहीं हंसी में उड़ा सकते। मान लीजिए अगर मेरा ये ब्रॉडकास्ट खराब हो गया तो मैं क्यों नहीं बोल सकती अरे यार प्लानिंग, व्हाई इट हैज टू बी लाइक ओ गॉड प्लानिंग के हिसाब से नहीं है। और एक दूसरी बात सुरेश जी की, जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वो सबकी जिंदगी में हो रहा है और वो होना है। वी ऑल आर हियर फॉर एक्सपीरियंसेस, प्यार करेंगे, धोखा देंगे, धोखा खाएंगे, कभी अच्छा फील करेंगे, कभी बुरा फील करेंगे, कभी कभी शादी करने का दिल करेगा तो कभी सेक्स। तो मतलब ये जो जिंदगी का लगा हुआ है सुरेश जी, जो कॉमन है, हम सबकी लाइफ में कॉमन है, हम सब सेम जिंदगी में इमोशन जी रहे हैं, टाइमिंग अलग है, बट फिर भी हम इतना एलियन क्यों फील कर रहे हैं। व्हाई वी कांट बी लाइक ओ तो अभी तो प्यार भी चल रहा है, मैं हार्ट ब्रेक में ब्रो वील गेट इट देयर, मतलब मे बी नेक्स्ट टाइम तेरा हार्ट ब्रेक होगा, आई विल बी इन लव, क्योंकि ये हम ओके क्यों नहीं है 1.3 बिलियन गोइंग थ्रू द सेम इमोशंस, बट हम ऐसे क्यों बिहेव करते हैं कि जो मैं फील कर रहा हूँ एलियन है या जो तुम फील कर रहे हो वो एलियन है। एक्चुअली यार ये ना ये सोशल हिप्नोटिज्म है। आई थिंक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो, इट इज ओके नॉट टू बी ओके। नानक दुखिया सब संसार, जिसकी बुद्धि रही है और जिंदा है वो परेशान है। एक्टिंग आपसे और मेरे से बेहतर कर रहा होगा, फर्क सिर्फ यही है वो परेशान है। ओके परेशान कौन नहीं है? जिस बच्चे को भी अकल नहीं है या जो मंदबुद्धि है, जिसको आई ये आपने पिछली बार भी कहा था, फिर उस दिन से मैं ऑब्जर्व करने लगी। ये जो घोड़े हैं, ये घोड़े जब तक दौड़ेंगे परेशानी होगी। आई थिंक ऑल स्क्रिप्चर्स आर टीचिंग अस वन थिंग, डू योर बेस्ट देन लीव द रेस्ट। जो आलसी लोग हैं वो पता क्या करते हैं, उनको लीव द रेस्ट बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन उनको ध्यान देना है पहले डू योर बेस्ट, उसके बाद रिजल्ट को छोड़ना सीखो। हम लोग ना रिजल्ट नहीं छोड़ रहे, हम एफर्ट छोड़ना चाहते हैं, पता है आलसी हो गए। एफर्ट्स मत छोड़ो, रिजल्ट छोड़ दो। जैसे ये ब्रॉडकास्ट आप कह रहे हो ना, आप टाइम पे तैयार थे, आपने टाइम पर लॉग इन भी किया, अब ठीक है वो एक आधा बटन नहीं प्रेस हुआ होगा, 2-3 मिनट इधर उधर हो गए, मैं कह रहा हूँ 30 मिनट भी इधर उधर हो जाते, कौन सी धरती टूट जाती, कौन गिर जाता। आपको याद है लास्ट टाइम हमने ट्यूसडे के लिए शायद रखा था और हम उसको नहीं कर पाए, राइट? वो पोस्टर मैंने किसी को भेज दिया। अच्छा
वो किसी को भेज दिया, तो फिर मैंने उनको बाद में बताया कि ये नहीं हो पाएगा। कह रहे यार मैंने तो भेज दिया, मैं कितने लोगों को कहूंगा। मैं कहा जितने लोग शाम को आपको कंप्लेन करें ना कि हमने लॉग इन किया था, तब बताना। मैं कहा तब बताना। So sometimes we are taking ourselves too seriously. अपनी एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। Do your best, but leave the rest. अभी आपको और मुझे लाइसेंस नहीं दिया ऊपर वाले ने कि जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा। और वो कुछ किताबें जरूर कहती हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। अगर इतना आसान होता सारे घर में बैठ के सोच ही रहे होते कुछ ना कुछ। तो सोचने से होती है अच्छी चीजें, लेकिन करनी भी होती है। तो डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। सुरेश जी, ये जो माहौल चल रहा है, मैंने इतनी सारी डिप्रेशन स्टोरी सुनी, मुझे भी पता है कि लोग डिप्रेस हैं, उनको एक मौका मिल गया है बस खुद को एक्सप्रेस करने का। तो वो होता है ना कि सब बोल रहे हैं तो मैं भी कह ही देता हूँ कि मैं भी इन दुखों से गुजर रहा था। आपका उनके लिए फाइनल मैसेज इन लोगों को क्या है जो लोग डिप्रेस हैं, लोनली, एंजाइटी फील करते हैं, अकेले फील करते हैं, खुद को कमरे में बंद कर लिया है, कमरे में नहीं बंद किया है तो खुद को बंद कर लिया है, एंड इट इज हार्ड टू रीच आउट टू देम। इन यंग माइंड्स के लिए, हर्ट लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अदर देन टेकिंग हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, वो तो जरूर लें, लेकिन उसके अलावा एक थॉट अपने दिमाग में सिर्फ ये डालें, देयर आर मेनी पीपल ऑन दिस प्लैनेट हु नीड योर हेल्प इन मेनी वेज। फाइंड वन पर्सन टू हेल्प, एंड आई एम सेइंग इट विद ऑल सिंसियरिटी, अनुपमा, anybody who is living for self more is more prone to get into depression and lot of other negative tendencies. आप देखिए, जो व्यक्ति भी अपने अलावा औरों के बारे में ज्यादा सोच रहा है ना, वो दूसरों से ज्यादा काम कर रहा होगा, दूसरों से ज्यादा एक्टिव होगा और दूसरों से कम बीमार होगा। पता है? हाँ, जैसे हमारे डैड, क्योंकि उनको घर चलाना था तो कुछ भी सिचुएशन आई वो लोग लगे रहे। अपने किसी और के बारे में सोचो। एक बहुत ही अहम और क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कोई इतना लो कैसे फील कर सकता है कि उसको सुसाइडल, जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, व्हाट दे कैन डू? अनुपमा, एज आई सेड, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट समबडी हु आर एक्सपर्ट इन दिस। लेकिन आप देखिए, एक तो वो है जो सुसाइड कर रहे हैं। मेरा सोसाइटी में हम सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एक तो ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ हु दैट पर्सन इज, देखिए किसान की आत्महत्या की कितनी खबरें आती हैं, कितनी लेडीज आत्महत्या कर लेती हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा, राइट? चाहे वो कोई भी सुसाइड हो, बस एक ही चीज करें कि सुसाइड को जस्टिफाई ना करें सोसाइटी कि क्योंकि उसका हार्ट ब्रेक हुआ तो किसी का सुसाइड करना अगर जस्टिफाइड है। आपको पता है इस दुनिया में अगर आप अभी हार्ट ब्रेक ढूंढने निकल जाओ, एवरी थर्ड पर्सन इज हार्ट बर्न्ड। सो यू आर अननोइंगली यू आर सप्लाइंग देम एन इंफॉर्मेशन दैट अगर आपके साथ ये हुआ हो तो सुसाइड जस्टिफाइड। अब ये तो ऐसे ही है कि कल को सपोज मेरे पास 50 लोग इंटरव्यू पे आए थे, मेरे को 48 को तो रिजेक्ट करना है, 2 रखने हैं। अब ये 48 में से 4 जाकर अगर कहीं लटक गए तो मतलब यू टेल मी हाउ विल द सोसाइटी फंक्शन? Agreed. How will the society function? So as a society, with all respect to the, whosoever has committed suicide, my deep sympathies, but as a society, we need to stop glorifying and justifying suicides. ये एक्चुअली सुरेश जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग यू आर राइट, क्योंकि मैंने बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू पीपल, आई गॉट 128 मैसेजेस, मतलब जिनसे मैंने बात की थी आफ्टर माय ट्वीट, कि जब लोग देखते हैं कि मरने के बाद इतनी लव एंड एक्सेप्टेंस लोग दिखा रहे हैं कि आपने कुछ भी किया एंड एक्सेप्टेड, तो पीपल फील कि चल यार मर ही जाते हैं, क्योंकि अगर people are not going to accept our failure or achievement जब हम जिंदा हैं, हमारी कमियां, तो ये भी एक चीज मुझे लगता है कि जो हम ये एक्सेप्टेंस दिखाते हैं कि आदमी ने जिंदगी में कुछ भी किया नहीं, जो भी किया था अच्छा बंदा है, जाने दो, maybe that acceptance is also dangerous, जिसकी वजह से अदर लोग मोटिवेट होते हैं to absolutely, that is what I'm saying. Let's not glorify, let's not justify. कोई कारण पर्याप्त नहीं है आत्महत्या करने के लिए।
सिंपल एज दैट, जी एज सिंपल एज दैट। आपकी बॉलीवुड में देखो कितने लोग हैं जो बेचारे कैमरा फेस नहीं करेंगे और जिंदगी निकल गई। या ट्रू। तो ऐसे अगर हम जस्टिफाई करने लग जाएं, आप बताओ कितने दिल टूट रहे हैं रोज, कितने टूट रहे हैं। तो रोज लोग कूदने लग जाएंगे। ट्रू। ऐसे लोग हैं जिनको अगले दिन के खाने के पैसे नहीं है जिनके पास। मतलब हाउ कैन वी जस्टिफाई सुसाइड? वी शुड नॉट जस्टिफाई एंड वी शुड नॉट ग्लोरीफाई सुसाइड्स। ओके, दिस इज समथिंग, अगर किसी की टेंडेंसीज है दे शुड सीक सम हेल्प। आप प्रोफेशनल्स के पास जाके बात कीजिए। आजकल यूट्यूब भरा हुआ है, व्हाट नॉट टू डू, स्टडी कर लीजिए। हाँ, बट हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम इसको ग्लोरीफाई नहीं करें, हम इसको जस्टिफाई ना करें। जो हो गया है हमें नहीं पता किसी इंडिविजुअल ने क्या सोच के किया, वी कैन ओनली कीप गेसिंग, बट लेट्स स्टॉप ग्लोरीफाइंग एंड जस्टिफाइंग। तो सुरेश जी, इतनी सीरियस बातें की हमने थ्रू आउट। वैसे आपके साथ चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है चाहे कितनी भी सीरियस बात हो। जाते जाते व्हाट यू हैव टू से टू ऑल द पीपल वाचिंग यू, मैं सबसे माफी दिखे, पर मुझे पता है कि बहुत लोग देख रहे हैं क्योंकि मुझे आपकी पिक्चर्स आती जाती दिख रही हैं। तो आपके सवाल ना ले पाने के लिए माफी चाहूंगी मैं। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए तो मैं सुरेश जी को सारे क्वेश्चंस भेज दूंगी। फिर सुरेश जी का डिपार्टमेंट है, वो उन सवालों के साथ क्या करना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी आप जाते जाते? देखिए, मैं लोगों से यही कहूंगा कि जो भी करें उसको दिल से करें, लेकिन जो रिजल्ट आ जाए उसको ऊपर वाले का प्रसाद समझ के ग्रहण करें। ओके, और जहां से आपने शुरू किया है उस स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा याद रखें, उसकी कोई निशानी अपने आसपास रखें, ताकि आपको ऊपर वाले की कृपा जो आप पर ऑलरेडी बरस रही है वो रोज दिखाई देती रहे। मैं इस बात पे ये वो कैसेट है जो जिसे खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे एक टाइम पे। And when I interviewed Salman, and not just interviewed, he loved the interview, and Salman told me a lot of personal things. बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई मेरी पर्सनल लेवल पे सलमान से, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में लाइफ कैन बी दिस मैजिकल कि आप जिस बंदे की कैसेट नहीं खरीद पा रहे, आप उस बंदे के साथ बैठो और आप गप्पे मार रहे हो। सुरेश जी इज राइट, और मैं अपनी जिंदगी से आप लोगों को बस इतना कह सकती हूँ कि लाइफ में सब कुछ लगा रहेगा, एक ही चीज आपको फोकस करनी है कि रिश्तों को वैल्यू करना है। जैसे कि सुरेश जी ने कहा, अपने पुराने दोस्त जिनसे आपकी बनती है, दिल का कनेक्शन है, उन बस रिश्तों को संभाल के रखिए। बाकी चीजें मैं हमेशा अपने माँ बाप को एक ही चीज कहती हूँ, अगर आपके अपने जिंदा है और स्वस्थ है वो बेस्ट चीज है, बाकी सब आप कमा सकते हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एंड रिमेंबर, वी ऑल आर सफरिंग आवर अचीवमेंट्स एंड नॉट आवर फेलियर्स। तो अगर आज आप सफर कर रहे हैं तो इट्स बिकॉज यू आर सक्सेसफुल। आपने अपनी लाइफ में एक शिफ्ट कमाया है और एक नेक्स्ट लेवल कमाया है, जिसकी वजह से आप नई तकलीफों से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है फिर से। तो थैंक यू सो मच सुरेश जी, यू ऑलवेज कम अप विद समथिंग सो न्यू कि मुझे हर बार लगता है इससे नया तो वो सुरेश जी नहीं बता पाएंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन माय होल पर्सपेक्टिव चेंजेस, द वे आई लुक एट लाइफ चेंजेस, एंड इट एड्स मोर positivity and perspective to my life and everybody watching. So it's always pleasure talking to you, Suresh. Thank you so much. Praise is all mine. Thank you. All the best. Thank you to all the people watching us. मैं फिर से आपसे माफी चाहूंगी आपके comments ना लेने के लिए, but I love you guys and all the people watching. We are listening. People will listen. थोड़ा सा आप भी हिम्मत दिखा के आगे बढ़ के एक बार अपने दिल की बात कहने की कोशिश कीजिए। Thank you so much everyone. Stay happy. Thank you. Thank you.